Hello, my dear students. Good evening and welcome to EnglishFunda. I am Vinod Shankaran, and today we will be discussing a very interesting article. Join me quickly. कुछ तो कोई तो दिख नहीं रहा हो, लेकिन join me quickly. Please make sure that you all attend these sessions. These are very important. Okay, and as we go along, we will also do some more good sessions. But then please be there to do these sessions with me. ठीक है, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डेड ही डाल दूं, रिकॉर्डेड ही देख लो. ठीक है, लाइव क्लास आने की क्या जरूरत है. एनीवे, so all said and done, join me quickly. Okay, and let's come to this. What are these sessions beneficial and important for? I keep telling you this. These sessions will enhance your reading skills. These sessions will improve your vocabulary. Good evening, beta Nityang. These sessions will improve your vocabulary and teach you ways to recall those words. These sessions will teach you complex sentence structures and how to break them into comprehensible fragments. Above all, these will enhance your knowledge about your world, as the articles and editorials are handpicked from a wide variety of topics. Right? कैसे करते हैं? We go through live YouTube sessions, then reading concepts सीखते हैं इसमें से. We also learn vocabulary, take quizzes on Sunday, repeat the process. That's what we do. So let's come to the first passage. This is the first passage. Do this. इसको करना जरा. Early 20th century, philanthropy with a goal. What is philanthropy? Philanthropy is generosity. लोगों की मदद करना, उदारता दिखाना लोगों के प्रति. ठीक है? Read this now. Early 20th century American philanthropy emerged out of the crucible of these ideas. Read now. आते ही नहीं, बच्चे ही नहीं आते, तो मैं क्या करूं? तो मैं तो कुछ भी कराने के लिए जाऊं, मैंने इफ आई ट्राई टू डू एनीथिंग फॉर यू, तो आते ही नहीं हो. एक दो के लिए मैं कैसे टाइम लगाऊंगा बताओ. भाई देखो, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर चीज में होता है. इतना समय लगाया तो इतना इन्वेस्टमेंट का समय मिला. भाई बच्चे आए, सीखा. हाउ विल आई डू इट इफ नोबडी कम्स? बहुत कम बच्चे आते हो, बाद में भी व्यूज नहीं होते, तो फिर मैं क्या ही बताऊं. शायद ग्रामर आता ही होगा, उसीलिए नहीं आता. ठीक है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ. आईलेट के लिए मैंने तो सोचा था, आईलेट एम सेट, मैंने एम सेट स्लैट वगैरह के लिए सारा को मिला करके मैं चाहता तो था. बट एनीवे, ओके, नाउ लेट्स डू दिस. डन. देखना बेटा, करा तो दूंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, तब करवा सकता हूँ. It's a very good passage taken from the Eon magazine. I'm sorry I did not write it. This has been taken from the Eon magazine. Done? Now, okay. Let's also finish it because it says in the Gospel of Wealth, Carnegie wrote. Carnegie wrote. So let's read that also. Done? Okay. Let's come back to the previous passage and read it and then look at the words. Early 20th century American philanthropy emerged out of the crucible of these ideas. Some ideas, I've taken it from some other passage, so these ideas must refer to ideas in the previous paragraph. Early 20th century American philanthropy emerged out of the crucible of these ideas. What is a crucible? Crucible एक container है
एक कंटेनर है जिसके अंदर में हम लोहा लकड़ वगैरह डाल करके उसको पिघलाते हैं. Okay, the boiler. Good evening, beta. The boiler in which you melt things is called a crucible. So ये philanthropy कहाँ से आया? From some ideas, putting into that crucible of ideas. Okay, that crucible of ideas gave birth to philanthropy. It seems. Philanthropy, it says. It also reflected developments in industrial capitalism. It also reflected developments in industrial capitalism. ये philanthropy किसको दिखा रहा था? किसको रिफ्लेक्ट करता था कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो कैपिटलिस्ट्स बने वो, इंक्लूडिंग द अक्यूमुलेशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ बाय द फाउंडर्स एंड ओनर्स ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन ऑयल, स्टील एंड रेल रोड्स. व्हाट इज अक्यूमुलेशन? गैदरिंग. अक्रीशन, अक्रीशन ना, गैदर करना, ठीक है. अक्यूमुलेशन, अनप्रेसिडेंटेड, दैट विच हैड नेवर हैपेंड बिफोर. प्रेसिडेंटेड का मतलब, प्रेसिडेंट का मतलब पहले होना, अनप्रेसिडेंट का मतलब उसके पहले नहीं हुआ होना. Okay, so including the accumulation of unprecedented wealth by founders and owners of companies involved in oil, steel and railroads. When the time to disperse का मतलब क्या है? Absolutely, Nityan, absolutely. So it says when the time to disperse money arrived for this wealthy elite. ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये जो ऊंचे लोग बन गए थे, इनके पास इनके पैसे जब बांटने का समय आया, दे टर्न देयर बिजनेस अक्यूमेन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग. इनकी जो बिजनेस की जो शूडनेस थी, उसी चीज को उन्होंने फिलैंथ्रोपी में भी लगाया कि भैया बिजनेस जैसा करता हूं वैसे मैं जेनरोसिटी भी करूंगा. They were determined to be as efficient and successful in their philanthropy as they had been in their roles as businessmen, adapting modern scientific methods to advance society, while at the same time inculcating, this word we have already learned, inculcating what they perceived, जो कि उन्होंने देखा, समझना, दिमाग से समझना, perceived, to be positive habits of self-interest in the recipient, self-interest in the recipients of their largest का मतलब है गिफ्ट, या जो भी आप ये देते हो, चैरिटी देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट. Okay, so this says these businessmen who had the money, the spare money to give in charity, they said कि मैं ऐसे ही नहीं दे दूंगा चैरिटी में. I'll apply my business acumen, अपने दिमाग लगाऊंगा और देखूंगा कि भाई people, and I give it in a scientific way so that people, the society itself can be advanced. और क्या कर सकते हैं कि वही सारी चीजें बार बार उनके अंदर में डाला जा सकता है जिससे कि सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ सके, खुद की इंटरेस्ट बढ़ सके, और ये सब चीजें पाने के बाद में सोसाइटी का ही एडवांसमेंट हो और खुद का भी एडवांसमेंट हो. ना ड्राइंग ऑन देयर बिजनेस ऑफ नॉलेज, new philanthropists such as Andrew Carnegie and John D. Rockefeller Sr. strategically leveraged their connections. Strategically leveraged their connections. Leveraged का मतलब है to manipulate for your own benefit. Leverage करना, उसको benefit के लिए काम करवाना. Okay, Rockefeller Senior strategically leveraged their own connections, funds and networks to address the problems besetting the society. Society में जो problem थी उसको address करने के लिए they actually used their connections also. And these funds moreover were provided in a way that would encourage recipients to develop personal autonomy. इस तरीके से पैसे दिए जाते थे कि भाई खुद की फ्रीडम, खुद की लिबर्टी आ जाए. भाई सिर्फ चैरिटी लेके खाना है उस तरीके से नहीं दिया जाता था. इस तरीके से चैरिटी दी जाती थी कि भाई हम खुद से ही फ्री भी हो जाए, टू डेवलप पर्सनल ऑटोनॉमी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट टू बेटर देमसेल्व्स एज मॉडल वर्कर्स एंड सिटीजंस. इन द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ 1889, Carnegie wrote, this is a book written by Carnegie, and there he says, in bestowing charity, bestowing का मतलब giving, in bestowing charity the main consideration should be to help those who will help themselves. Don't give it to somebody who will not help himself. So give charity to somebody who will help himself, to provide part of the means by which those who desire to improve may do so. जो इंप्रूव करना चाहते हैं उनको कम से कम कुछ मदद किया जाए, पूरी तरीके से नहीं, कुछ मदद किया जाए. टू गिव दोस हु डिजायर टू यूज द एड्स बाय व्हिच दे मे राइज, टू असिस्ट बट रेयरली और नेवर डू टू डू ऑल. सारी चीजें उनके लिए नहीं करना, only to assist or so that they can rise. Neither the individual nor the race is improved by alms giving. Alms giving का मतलब है शोले वेलकम बेटा, alms giving का मतलब है भीख देना. लेकिन सिर्फ भीख नहीं देना है, ठीक है. अगर मैं चैरिटी कर रहा हूं तो आई वांट द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल टू इंप्रूव.
That was the goal of all the charity givers. ये philanthropists जो थे उन सबका यही है. Even Bill Gates, Melinda Gates का जो foundation है, BMF, Bill Gates, Melinda Gates का foundation जो है, that also gives, but when they give money, they make sure that it goes to the right people and the objectives are realized. This is part of a larger paragraph which I read, which was a beautiful paragraph. ठीक है, I've just given you two, दो ही दिया हुआ है. How to find and influence people. Yes, very good, beta Nitya. Yes, वो Dale Carnegie, वो Dale Carnegie. Okay, anyway, so what I'm saying is, this I picked up, and that entire article was beautiful. Okay, it had a really good message. Anyway, उसको पढ़ना अगर मिल जाएगा तो तुमको ये this I got from the Eon magazine. So it has been taken from, there's an excerpt from Eon magazine, this philanthropy thing. Okay, so please read it. If you get hold of that entire passage, usko pura padna. Now let us try. And what did we learn from this? What did we read in this passage? We learned that even philanthropists are usually big businessmen, okay, tycoons, people have billionaires. But when they give their money in charity, they just don't throw away their money. जब भी पैसे देते हैं तो they make sure that the money works for them and the society, works for the people, the individuals to whom the charity is going, और साथ साथ में वो society को भी मदद करे. Well, and we learned in the process, we learned some new words. Let us check. Philanthropy का antonym बताओ. What is the opposite of philanthropy? Now you know that it's a positive word. Positive word. Antonym चाहिए तो negative चाहिए. So which word do you think? If you do not know the other words, guess it. Guess करना है इसको. Philanthropy. What could be the meaning? बताओ. Antonym बताना है. Opposite बताना है नित्यांक. Opposite बताना है. Elite athletes, very good, beta. This is very nice. Madhavi, very nice. It is greed. It is greed. It is not altruism. ये सब meaning है. Philanthropy का meaning altruism भी है, magnanimity है, munificence है. All the three words are the meanings of philanthropy. Philanthropy का तीनों meaning है: altruism, magnanimity, and munificence. Okay, and the opposite is greed. Opposite is greed. ये तीनों वर्ड याद हो जाने चाहिए. ऐसे करके हमको सीखना है. ठीक है. One word gave me 3 more words. That is, I'm learning 4 words in all: philanthropy, altruism, magnanimity, and munificence. और ये भी नया word होता तो ये भी सीख रहा होता. So the opposite is greed. Well, let's go to the next question now. Accumulation. Accumulation. What is the synonym? What is the synonym? Accretion, digression, dispensation, and lassitude is a word from the last class. Lassitude is a word from the last class. I kept it purposefully. So say accumulation. What is the synonym of this word? इसका synonym क्या है? इसका पर्यायवाची क्या है? Very good, beta. This is accretion. It is accretion. I am not getting into the roots, prefixes, suffixes part of it, okay? Because उतना मेहनत करने जाऊं उतने crowd आना चाहिए. ठीक है, तभी तो मैं ज्यादा मैं भी करूं. मेरे कुछ तो ROI हो यार. टाइम का इन्वेस्टमेंट का वापस तो मिले. Anyway, you know, try to do it. And if you want to ask. अगर बोलोगे कि सर वो सब हम नहीं जानते, हम तो आए हैं. I am there in the class. I am going to ask you. Please go ahead and ask. Okay. Accumulation is to gather. So the meaning is accretion. And these two words are opposites. No. Dispensation is giving away. Dispensation is giving away, distribution. And digression is bhatakna, diversion. Digression is diversion. Grace means to go. Grace means to go. So progress. Egress का मतलब क्या जानते हो? To go out. A का मतलब out और grace का मतलब जाना, तो बाहर जाना. And lassitude is lethargy. This we learned in the last class. Okay. So let's go to the next word. Okay.
अनप्रेसिडेंटेड, एंटोनिम बताना है। अनप्रेसिडेंटेड एंटोनिम क्या होगा? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभी तक जो नहीं हुआ, अभी तक जो नहीं हुआ, ठीक है? तो उल्टा बोलना है। गेस भी कर सकते हो, गेस भी कर सकते हो। सोनू तो जरा सा लेट तो हो गया। अनप्रेसिडेंटेड का ऑपोजिट बताना है। वो पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है? सी, अनप्रेसिडेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, राइट? पॉजिटिव सेंस में पढ़ा था पैसेज में, पॉजिटिव सेंस में पढ़ा था। अब नेगेटिव सेंस चाहिए, चूंकि एंटोनिम बोल रहा हूं। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इसके पहले कभी नहीं हुआ। Absolutely, Utkarshni. Very good. And elite. Very good, beta. This is mundane. What did I tell you? Mundane is dull, trite, एक जैसा कौन, कॉमन, टीडियस। इसको सीखा था ना। अनप्रेसिडेंट तो बाकी तीनों ही हो जाएगा, सारा का तो मीनिंग ही है। अनराइवल्ड का मतलब कोई उसका जोड़ नहीं होना, कोई राइवल नहीं होना। एक्सेप्शनल, ठीक है, एकदम जबरदस्त चीज होना, उसके जैसा कोई चीज और नहीं होगा। पायनियरिंग, तीनों तो मीनिंग हो गया। द ऑपोजिट इज मंडेन। सो प्लीज वॉच द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इंस्ट्रक्शन को केयरफुली देखना बेटा। मंडेन इज बोरिंग, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। नाउ एलीट, फिर सिनोनिम बताना है। एलीट का सिनोनिम बताना है। हाँ, रेपिटेटिव, एब्सोल्युटली। एलीट का सिनोनिम बताना है। ओके, थिंक अबाउट इट। सिनोनिम बताना है। एलीट माने हाई क्लास पीपल। थिंक अबाउट इट। And the words you learn must come back to your exam, your quiz on Sunday. संडे को जो क्विज होगा उसमें आना चाहिए। संडे को क्विज होता है कहां पर? सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम चाहिए बेटा। सोचना जरा। हाई क्लास पीपल। आई थिंक द आंसर इज प्रीटी इजी। एलीट इज हाई क्लास पीपल, सो इट्स प्रीटी इजी। उत्कर्षणी, एक बार सोचो बेटा, एक बार सोचो, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मैंने आंसर तो दे दिया, और क्या चाहिए? दफट से हो जाना चाहिए। डोंट टेक अ फैंसी टू न्यू वर्ड्स। नए नए वर्ड दिख गए, बोले हो बड़ा मजा आ रहा है, उसमें मत चले जाओ, ठीक है? उसमें मत चले जाओ। एक यस, नित्यांग गॉट इट नाउ, ठीक है? बड़े मजेदार वर्ड दिख रहे हैं, उसमें नहीं जाना है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द वर्ड। द आंसर इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी तो एलीट क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? हाई क्लास पीपल। एलीट का मतलब हाई क्लास पीपल हो गया। बाकी तीनों क्या है सर? भगवान जाने क्या है, भगवान जाने क्या है। मेरा तो आंसर मिल गया था भैया, मैं उसी को देखूंगा। मैं फालतू का इधर उधर का कोशिश नहीं करूंगा। रिमेंबर, एक चीज याद रखना, एग्जाम में पास करना स्मार्टनेस का भी बहुत बड़ा खेल है इसमें। एग्जाम जो क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो क्रैक करते हैं, जानते हो, वो वहां पर मैं उस दिन वो ज्यादा स्मार्ट काम करता है। नहीं तो सोचो हमारे इसमें, मैंने थिंक अबाउट ऑल दोस पीपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तुमको लगता है कि वे सब बेवकूफ बैठे हैं? देयर बी 1000 guys who will be very very good, but on the day of the examination, वो जो एग्जामिनेशन में जो डिफरेंस लाना है वो, ठीक है? सो बी केयरफुल। नाउ प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट इज द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास ऑफ पीपल इज कॉल्ड द प्रोलेटेरिएट, ठीक है? याद रखना, प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास को बोलते हैं। और इसको पढ़ते हैं बुर्जुआजी। बुर्जुआजी है, बुर्जुआजी। आर को नहीं पढ़ना है, आर को बुह, हा बोलना है, बुर्जुआजी। हाँ, बुर्जुआजी स्पेलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके एग्जाम में अगर स्पेलिंग आते हैं तो ये स्पेलिंग भी खूब आ जाता है। प्रोलेटेरिएट भी स्पेलिंग में आ जाता है, बुर्जुआजी भी आ जाता है, ठीक है? अब दिस वर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नाउअडेज, क्योंकि आजकल पेपर में खूब निकलता है, हर जगह पूरी दुनिया में ये चक्कर चलता ही है। रैबल का मतलब है क्राउड, मॉब। रैबल का मतलब है मॉब या क्राउड। उनको भड़काना हुआ तो हम क्या बोलते हैं जानते हो? रैबल राउजर्स। रैबल राउजर्स। कई सारे बंदे ऐसे हैं जो जानते हैं कि भीड़ को भड़काना कैसे।
ठीक है, तो भीड़ भड़काने वाले को हम लोग बोलते हैं रैबल राउजर्स बोलते हैं, रैबल क्राउड को बोलते हैं। अभी जब इसकी बात हुई थी हमारे क्या बोलता है अग्निवीर वाले में, ठीक है, तो भड़काओ भीड़, ठीक है, भीड़, उसमें एक आध बंदा रहा होगा जो भड़काया होगा भीड़ को, ठीक है, तो रैबल राउजर्स के चलते नुकसान भी करने लगे वो, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, माने वी आर नॉट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अच्छा था या बुरा था, आई एम नॉट द पर्सन एंड वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग इट हियर, ओके। अच्छा, आइलेट में पूछा था रैबल राउजर्स, देखो वही तो बता रहा हूँ, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सो रैबल is crowd and proletariat is the working class, bourgeoisie is the middle class, we are all bourgeoisie, ठीक है, most of us are, we do not belong to the elite class, बहुत पैसे वाले घर से नहीं है। acumen synonym बताओ, they wanted to bring the acumen, बिजनेसमैन क्या चाहते थे कि हमारा अपनी acumen ले जाऊं चैरिटी में, चैरिटी में भी अपना acumen लेके जाऊं ताकि लोगों को फायदा हो, तो acumen का synonym क्या होना चाहिए, थिंक अबाउट इट। अपनी बुद्धिमता, अपनी चालाकपन लेके जाए, तो इसमें एक वर्ड है जो चालाकी है, बी केयरफुल, सोच के बताना। अक्यूमेन का मतलब है चालाकी, तो कौन सा वर्ड चालाकी के बराबर होना चाहिए। नित्यांक, 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 प्लीज प्लीज थिंक, लिसन, मैं बोल तो रहा हूं, बक बक तो कर रहा हूं, लिसन। श्वेता, वेरी गुड, देखो श्वेता गेस्टेड, ठीक है, बोले कि सर अगर मान लीजिए चालाकी की बात कर रहा हूं तो जेनरॉसिटी चालाकी नहीं है, ये तो गलती हो गया, करेज भी नहीं है, ठीक है, करेज भी नहीं बोल सकता, तो एक ही वर्ड रह गया सर, पर्सपिकैसिटी बोलना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। अक्यूमेन इज पर्सपिकैसिटी और शार्पनेस ऑफ द माइंड, या shrewdness in a positive sense, shrewdness in the positive sense, याद रखना, ठीक है। perspicacious बोलते हैं, perspicacious बोलते हैं, वहीं से आया वाला वर्ड है perspicacity, पूरी चीज को अच्छी तरीके से समझना, बिन बोले समझना, उसको बोलते हैं perspicacity, ओके। अच्छा, ये परसीव का मतलब है पूरी तरीके से देखना या कैप्चर करना, पूरी तरीके से पकड़ना, तो आंखों से भी देखना, कान से भी सुनना, ठीक है, सब तरीके से मैं जो बंदा समझता है उसको हम लोग बोलते हैं वो परसीव करता है, ठीक है। मैं देखता हूं तुमको तो आई लुक एट यू, लेकिन इफ आई एम परसीविंग समथिंग देन आई एम नोटिसिंग एवरीथिंग, और मेरा दिमाग काम भी कर रहा है, सबको कनेक्शन करने की भी कोशिश कर रहा है, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, सिनोनिम अगेन, ओके। द रिसिपिएंट्स ऑफ द लार्जेस्ट, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था ना पैसेज में, द रिसिपिएंट्स ऑफ द लार्जेस्ट शुड अंडरस्टैंड दैट दे शुड स्पेंड द मनी फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, ऐसे कुछ लिखा था। सिनोनिम क्या है, लार्जेस्ट का मतलब है चैरिटी, तो विच वर्ड इज चैरिटी हियर, विच वर्ड इज चैरिटी हियर, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, जरा गेस मारो, देखता हूं। वी लर्न सम वर्ड्स, आई सेड चार पांच वर्ड आपको सिखा रहा हूं, मैंने बोला चार पांच वर्ड सिखा रहा हूं फिलंथ्रोपी के साथ में, जरा दिमाग पे जोर लगाओ, फिलंथ्रोपी के साथ में चार पांच वर्ड मैंने बोला कि याद करो, जरा दिमाग पे जोर लगाओ। मैंने बोला कि जब संडे को एग्जाम होगी, क्विज होगी, तो उसमें एब्सोल्युटली श्वेता, एब्सोल्युटली वेरी गुड, मैंने बोला तो था लार्जेस्ट मींस चैरिटी, जेनरोसिटी, तो जेनरोसिटी का कौन सा वर्ड है, और कोई वर्ड तो है ही नहीं सर, ये तो अभी अभी आपने सिखाया, उसी को फिर लगा दिया आपने, अभी सिखाया उसको 2 क्वेश्चन के बाद लगा दिया, करना ही पड़ेगा तभी सीखोगे। म्यूनिफिसेंस याद आ रहा है, हाँ, मैग्नानिमिटी याद आया, लार्जेस्ट, म्यूनिफिसेंस, फिलंथ्रॉपी, ऑल दोस वर्ड्स मीन द सेम, और ये सब कंजूसी है, पार्सिमनी, माइजरलीनेस, ये दोनों कंजूसी है, पार्सिमनी, माइजरलीनेस,
कंजूसी है। और एक्रिमनी क्या है बताना? बिटरनेस, बिटरनेस, कड़वाहट। रिलेशनशिप वगैरह में जो कड़वाहट आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रिमनी। हाँ, दिस इज पार्सिमनी और दिस इज माइजरलीनेस। पार्सिमनी, माइजरलीनेस का मतलब है कंजूस, कंजूसपन करना। ठीक है, वो जब क्या बोलते हैं उसको, माइजरली जो होता है, ठीक है, जो बंदा खर्चा ही नहीं करना चाहता, ठीक है, कंजूस जो होता है। ओके, ना ऑटोनमी, सिनोनिम, सिनोनिम बताना। मैं पैसे उनके लिए दूंगा ताकि लोगों को ऑटोनमी मिले, तो ऑटोनमी का सिनोनिम क्या है? ताकि लोगों को ऑटोनमी मिले, सो विच इज द करेक्ट वर्ड? मैं पैसे खर्च करूंगा ताकि, एब्सोल्युटली नित्यांग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एलीट नित्यांग, वेरी गुड। इट इज इट्स लिबर्टी, वेरी नाइस, इट इज ऑटोनमी इज लिबर्टी। ये तीनों तो ये तो बंधन हो गया सर। बॉन्डेज का मतलब बंधन, टिरनी का मतलब उत्पीड़न, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन करना, ठीक है, ये भी एक्सप्लॉइटेशन, टिरनी, एक्सप्लॉइटेशन, ये तीनों का मतलब तो एक ही है। श्वेता, वेरी गुड। नाउ दिस इज अगेन अ बिग कैंडिडेट फॉर स्पेलिंग। याद रखना, जिसको मैं स्पेलिंग के लिए मार्क करता हूं वो कई बार एग्जाम में देख जाओगे, क्योंकि इसमें हर किसी को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो टिरनी का स्पेलिंग में नॉर्मली हम डबल आर मार देते हैं, ठीक है, इट इज, दैट इज व्हाट इज नॉट टू बी डन। बेस्टॉव करना, यस, सुप्रीम कोर्ट्स यूज दिस, यस। एंड सिनोनिम, बेस्टो, बेस्टो करना, ठीक है, तो क्या करना? हाथ तो आपने देख लिया, यू सॉ माई जेस्चर, बेस्टो करना, लीजिए, विच वन इज द करेक्ट? नित्यांक, तुमको ना ये घुसा मारू सबसे पहले, बोले यू आर स्मार्ट, लेकिन स्मार्टनेस को यूज नहीं करते, समर्पित करना कुछ। हाँ, तो बताओ कौन सा, ऐसा कौन सा वर्ड ढूंढते हो जो तुमको नहीं आता है? ऐसे क्यों करते हो? जो आता है उसको पहले चेक तो कर लो, कुछ देना, वेरी गुड। जो है उसमें देख लो, उसमें कोई वर्ड है। जब नहीं होगा, तुमको जो आता है वो नहीं होगा, तभी तुम दूसरे वर्ड को पकड़ोगे। देखो, टू प्रेजेंट, टू यूजर्व, टू पुल बैक, हो तो गया। श्वेता गॉट इट, सोनू गॉट इट, एब्सोल्युटली, टू प्रेजेंट देना। मैंने इसीलिए टू लिखा था, ताकि तुमको मैंने तुम पकड़ने में दिक्कत ना हो आप, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। यूजर्व का मतलब क्या है बताना? यूजर्व का मतलब क्या है? पैसा, इसमें इंटरेस्ट पे पैसा देना, इंटरेस्ट पे पैसा देना, यूजर्व करना, ठीक है, यूजर्व करना। To present is to give. Absolutely, Utkarshni. Absolutely. Very good. अच्छी बात है. That's all for today. And on Sunday, if you're new to this class, let me tell you, download the app that the link of the app is given in the description box. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। सर क्या करना है? सर इसको डाउनलोड, लिंक को डाउनलोड करो, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद संडे को क्विज होता है हमारा। संडे को क्विज होता है, किस चीज का सर? इसी चीज का, आज जो आपने सप्ताह भर में पढ़ा उसकी क्विज होगी संडे को। क्विज इज जस्ट अ टेस्ट, इट्स नॉट अ क्लास। ऐप में टेस्ट होगी, उस टेस्ट को देना है, क्योंकि उसमें मैं, हो सकता है कि इस पैसेज का पूरा पैसेज लगा दो, अलग अलग किस्म के क्वेश्चन पूछूं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो। ओके, सो प्लीज बी देयर, डाउनलोड द ऐप एंड कम फॉर द क्विजेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सीख जाओगे। याद रखना, कुछ भी सीखने के बाद रिवाइज करने पर ही वो दिमाग में रहता है, तो रिवीजन के लिए मैं संडे को तुमको ये देता हूँ। नाउ व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? रिवाइज दिस सेशन अ कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द वीक एंड बी रेडी फॉर द क्विजेस ऑन संडे। ओके, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस इफ यू हैव नॉट डन। अगर अभी अभी तक अभी आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज कर लो, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि भाई हाँ, मैंने कुछ काम किया तो बच्चे ने पसंद भी किया। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार देना, ठीक है। एंड डाउनलोड अवर ऐप नाउ, द लिंक इज गिवन इन द
description. Bye bye, beta. Bye. Thank you all very much. See you in the next class. 7 o'clock. 7 o'clock. 7 बजे का क्विज होता है. 7 p.m. is the quiz. ठीक है.